رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ میرا سوال یہ ہے کہ ملازمین سے مالک روزے کی حالت میں عام دنوں کی طرح کام لیتا ہو، احساس تک نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ملازمین کو کیا کرنا چاہیے؟ واقعی اسٹیٹ کو چاہیے کہ ملازمین کو رعایت دے، کہ اگر کوئی اپنے ملازمین کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو رمضان میں اس پہ تو چونکہ وہ فضیلت بھی ہے نا، ثواب کا بھی ہے جی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سیٹ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی نرمی نہیں کرتا جی، اب بیچارہ جو ملازم ہے وہ تھک جاتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے اس کے لیے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ ایسی نوکری نہ کرے ٹھیک۔ جب نفل روزہ ہے تو اس کو حکم یہی ہوگا کہ یہ روزہ چھوڑ دے ٹھیک۔ یہ فرض ہے تو لہذا اب یہ روزہ رکھے گا، نوکری چھوڑے گا، کوئی اور ذریعہ تلاش کرے گا۔ رمضان جو ہے وہ عبادت کے لیے نہ کہ کمانے کے لیے، تو اب اس میں جو ہے نا وہ جو بھی کمانا ہے نا اور نیکیاں کمائیں، اب اس بزنس کو جو ہے نا ترقی دیں۔ صحیح یہ ہے نا 11 ماہ دوسرے بزنس کے لیے، مالی بزنس کے لیے وہ کرے 11 ماہ، اور یہ جو ہے نا یہ چونکہ اب اس میں دیکھیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عام دنوں میں یہ نہیں ہے۔ صحیح تو یہاں دے ریٹ کتنا ہائی ہے، ابھی ڈیمانڈ ہے ہائی ہے نا، ابھی تو دیکھیں کہ ہائی بولیں کیا بولیں گے، یعنی ابھی کتنی رعایت ہے ہمیں جی۔ یہ بھی صحیح ہے، ہائی بھی ہے، رعایت بھی ہے، کم نیکی کر کے زیادہ ثواب، بالکل کم نیکی کر کے زیادہ ثواب ہے۔ تو بندہ یہ چیز حاصل کرے کہ 11 ماہ میں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، صحیح سارا کوٹا یعنی اسی میں پورا کر لے، مگر دیکھیں کہ عبادت کی برکت ہے کہ رمضان میں اگر نوافل کا عادی بن جائے گا نا کوئی جی تو سارا سال پڑھے گا انشاءاللہ الکریم۔ یعنی اگر نہیں بھی پڑھتا سارا سال تو کم از کم اتنی نیکیاں تو جمع کر لے۔ مسلمانوں میں آپ دیکھیں نا جی تو رمضان کی ایک رمق ہے الحمدللہ، الحمدللہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گی۔ بعض کا تو یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، نوازا ہے، تو وہ سال بھر جو بکرے وغیرہ پالتے ہیں جی، اور پھر جو رمضان میں وہ لنگر سارا پالا ہونے ذبح کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر لنگر چلاتے ہیں۔ بہت اعتکاف والوں کو، روزے داروں کو، سحری عام عام ان گھروں کو دیں گے، سب یوں ترکیب ہوتا صحیح ہے، مالداروں کو، غریبوں، ہاں جو بھی ہے، جو بھی آ جائے، ہاں ہوتا بھی صدقہ ہے اللہ۔ یہ اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے۔ اعتکاف تو بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر اللہ کے ولی کی صحبت، اللہ کے ولی کی زیارت، یہ بس یہیں عالمی مدنی مرکز میں ملتی ہے، یہ کہیں نہیں ملتی۔ سیکھنے کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، سوچ سے زیادہ بابا جان اور دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ شورا کی بیانات میں ہمیں بہت اچھی ہماری اصلاح ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سیکھنے والا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آپ دوسروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ دیتے ہیں کہ فیضان مدینہ میں سکون پائیے، نماز ایسی چیز ہے کہ سکون پانے کی چیز ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی تھی، گناہوں سے دوری نہیں ہو پاتی تھی، پہلے ہی دن ایک ہی دن میں نے یہاں پہ دیکھا نمازوں کی پابندی ہوئی، ماشاءاللہ ایسا ہوا کہ تہجد بھی ادا کی، صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی۔ 10 دنوں میں الحمدللہ مکمل نماز، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل الحمدللہ سیکھ لیے ہیں۔ نفلی عبادتیں جو ہیں تہجد وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ عمران اتاری صاحب کے بیانات ہیں، اس سے ہم نے جو ہے وہ بدگمانی کے حوالے سے سیکھا، امانت کس طرح لوٹانی چاہیے اس کے حوالے سے سیکھا، قربانی کس طرح دینی چاہیے اسلامی بھائی کو دوسرے اسلامی بھائی کے لیے، وہ ہم نے سیکھا۔ تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یہاں پر عشاء چاش کی بہاریں ہوتی ہیں اور خوب علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں نگران شورا کے بیان میں ہمیں۔ مبلغ دعوت اسلامی خدمت میں پیش ہے، مدنی چینل کی صورت میں، فیضان آن لائن اکیڈمی کی صورت میں۔ ساتھ سجا دیا، نوجوانوں کو سجا دیا، بڑوں کو
को सजा दिया। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत। मैंने और मेरे साथ 5 इस्लामी भाइयों ने यहाँ से एतकाफ़ मुकम्मल करने के बाद 12 माह की नीयत बनाई है। तो हम अमीर अहले सुन्नत से दरख्वास्त करते हैं कि हम 5 इस्लामी भाइयों के लिए वो खुसूसी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इस 12 माह के काफ़िले के लिए कबूल करे और हमें कामयाबी अता फरमाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है, तो मैंने 30 दिन की वहाँ से लीव ली है। सारा साल हम कमाते हैं, सारा साल अपनी जिम्मेदारियों में रहते हैं, लेकिन एक माह बंदा अल्लाह के सुपुर्द कर दे अपने आप को। हम जब दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के मसाइल सुनते हैं तो काफ़ी अपने झंझटों में घिरे हुए होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बंदा आते हैं तो सारी दुनिया की टेंशन भूल जाता है। मेन बात अपनी आखिरत याद आती है, यहाँ पर अपनी कब्र का ज़हन मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में आकर इश्क रसूल में और इजाफा हुआ है और हुजूर के इश्क में तड़पने का और जज्बा मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी का पहला इत्तिकाफ़ है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं एंटर हुआ कि यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली टाइप हैं, कि कोई किसी को कंपेयर नहीं करता यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा माहौल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाया गया था, पूरा टाइम दिया जाता है। उसके अलावा इजाफी टाइम भी दिया जाता है पढ़ाने के लिए कि भी ताकि अच्छे से हम सीख कर भी जाएँ, आगे घर वालों को भी सिखाएं, उनको भी ताकि बताएं कि हम कुछ सीख कर आएँ। मैं सिगरेट बहुत पीता था, इधर आगे पीर साहब ने कहा तो मैंने सिगरेट छोड़ दी। यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नमाज में कुछ मेरी गलतियाँ थीं दुरुस्त हुई, इसके अलावा दुआएं मुझे कुछ याद नहीं थी, वो मुझे याद हुई। जब ये यानी दाढ़ी वगैरह आई थी ना, आने से पहले ये भी यानी कटवानी थी। पीर साहब को काले बिच्छू रसाला पड़ा, ये कटवाई नहीं, उसी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह ये सजी है और दूसरों को भी इसकी नियत कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान जैसे गुजारने चाहिए वो यही बेहतर तरीका के नेकी का सवाब डबल हो जाता है। इतना प्यारा माहौल लगा, मुबल्लिगीन को फोन किया, हम अपने ना शहर अरुणाबाद में मजलिस इजाजत देगी, 1 माह का एहतिकाफ कराएंगे इंशाअल्लाह। मैंने नियत की थी मोहम्मद शरीफ की, तो इंशाल्लाह मैंने वो सजाया। जैसे भी दाढ़ी कटवाई है उससे मैं तौबा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं दाढ़ी मुबारक सजाऊंगा चेहरे पे। दिल से मेरी नियत होगी, नमाज कभी कज़ा नहीं करूँगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये 2 नियतें मैंने टारगेट लिया है कि ये 2 नियतें मैं पूरी पक्की करके जाऊँगा और एक इमाम शरीफ सजा के जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मैंने 12 माह में भी पेश कर दिया है और नाम भी लिखा दिया है। चांद रात से मेरा 12 माह का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। पंहिंजे मुर्शिद बारगाह में सिंधी में 2 कलाम पढ़ण जो मां आरज़ू रखां थो। झोली मुंहिंजी आगे खाली, झोली भरिया रसूल अल्लाह, नागे ताकत मोह में माले से गोवर या रसूल अल्लाह। आज मदनी मुज़ाकरे में जो लोग नमाज में अपनी कोनियों को ज़मीन पे रख देते ना सजने में जाने के बाद, तो मेरे को पहले नहीं पता कि इसमें नमाज मकरूह हो जाती है, आज मेरे को पता लगा। इसके अलावा और उन्होंने बताया कि इंसान अपने गुनाहों में इतना मुब्तला हो जाता है कि वो जो ना तौबा नहीं कर पाता, तो अल्लाह ताला उसकी एक कोई ऐसी सी बात अच्छी लग जाती है कि वो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मस्जिद में दाखिल हों, एहतिकाफ की नियत कर लिया करें जब तक मस्जिद में रहेंगे। मुफ्त में एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के पानी पीना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत कर ली थी। नहीं की तो इफ्तार का वक्त आ गया तो अब याद आया तो अब कर रहे। इफ्तार के लिए अगर नियत की है तो ये कि बेहतर तरीका ये है कि एहतिकाफ की नियत सवाब के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, और कुछ जिक्र व दुरूद कर ले, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अब बेशक इफ्तार वगैरह कर रहे, मतलब खाली खाने पीने के लिए नियत करेंगे काम तो चल जाएगा, खाना पीना भी जायज़ हो जाएगा, लेकिन एहतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़िया दुरूद सलाम मकतबत मदीना का रिसाला दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पर, उसमें से आज की 1445 हिजरी की माह रमज़ान शरीफ की 15वीं शब की निस्बत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 15, हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं सारे दुरूद व वजीफे छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ऐसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी। दादा जान मुझे आप उन्हें प्यार कर रहे? मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इरफान भाई क्या बात है, आप इतना अपसेट क्यों हैं? सब खैरियत तो है ना? अरे उज़ैर भाई परेशानी कोई बात नहीं, बस मैं अपने दादा जान को याद कर रहा था और उनके साथ गुजरे लम्हात के बारे में सोच रहा था। ओह आपके दादा जान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वैसे इरफान भाई दादा जान की बात ही कुछ और होती है। दादा जान का प्यार, दादा जान की मोहब्बत, दादा जान की शफ़क़त, और वो बच्चे तो बहुत खुशनसीब हैं जिनके दादा जान जिंदा हैं और वो उनका ख्याल भी रखते हैं, उनको परेशान नहीं करते, उनकी हर बात मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। जी सही कह रहे हैं आप, वाकई वो बहुत खुश नसीब है। आपको बताएं मेरे दादा जान तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे अब्बू की डांट से बचाते थे, मुझे रोजाना कहानी सुनाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इरफान भाई हौसला रखें, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। जी वो तो अब नहीं है, लेकिन आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, तो आप कुछ बताएं ना मैं अब क्या करूं। इरफान भाई इस हवाले से मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक शख्सियत है जो आपको बता सकते हैं और वो है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया। ये आपने अच्छा मशवरा दिया है, चले अमीर अहले सुन्नत से ही पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि जिन बच्चों के दादा जान इंतकाल कर जाएं और फिर उनकी बहुत याद आ रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, अगर दादा जान शफकत करते होंगे, नाना जान शफकत करते होंगे तो वाकई याद आएंगे। शफकत करेंगे तो कुछ खाने की चीजें देंगे, तो खिलौने देते होंगे, तो ऐसे दादा जान भले लगते हैं। तो अब याद आ रही है तो इनको इस साल सवाब किया जाए, और अगर वो नेक साले इंसान थे तो इनके नक्शे कदम पर चला जाए, इनकी अगर अच्छी अच्छी बातें वो करते थे जो दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर थी तो उन पर अमल किया जाए और उनको मतलब इस साल सवाब में खूब याद रखा जाए, मगफिरत के लिए दुआ की जाए उनकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई शख्स रोज़े से हो और ज़ोहर की नमाज के बाद उसकी आंख लग गई और इफ्तार के 1 घंटे बाद वो उठा है, तो अब उस सूरत में उसका रोज़ा हो जाएगा? रोज़ा तो हो जाएगा, ठीक। नमाज कज़ा हो गई इसकी जो, तो अगर ये जानबूझकर इस तरह सोया है, परवाह ही नहीं है, और नमाज कज़ा कर दी है, तो जबकि जानबूझकर ऐसा कहने उसको परवाह ही नहीं, नमाज के सो गया, तो मतलब इसने ज़ाहिर गुनाह किया, जबकि नमाज की परवाह नहीं थी। और वरना है कि नमाज की परवाह जिसको हो, जागने का जहन भी हो कि मैंने नमाज पढ़नी है,
भरपूर कोशिश भी करे इसके उठने के लिए। मसलन आजकल वो अलार्म सेट करते हैं, या मोबाइल फ़ोन पर भी जो अलार्म होता है उसकी तरकीब बना लेते हैं, किसी को बोल भी देते हैं कि उठा देना वगैरह, ऐसी तरकीब करके कि उठने के असबाब अपने, फिर भी आंख नहीं खुली तो अब ये गुनाहगार नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे होते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते। अब इस सूरत में वो सरेआम भी खा रहे होते हैं, तो अब ऐसा जो सरेआम खा रहे हों तो उनके लिए कोई सज़ा भी है? अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो फ़र्ज़ का तर्क करना छोड़ना ये गुनाह कबीरा कहलाता है, बड़ा गुनाह, और बड़े गुनाह पर अज़ाब है। तो यूँ मतलब एक भी रोज़ा जानबूझकर कोई छोड़ देगा तो वो अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक है। जो लोग रोज़ा नहीं रखते तो उनको अल्लाह पाक से डरना चाहिए। फिर दूसरों के सामने अलल ऐलान ये खाते हैं, ये दूसरा गुनाह कर रही हैं। रमज़ान शरीफ का ये एहतराम नहीं कर रहे, और रोज़ादारों इनके मतलब ये बेबाकी है कि अपने गुनाह का एक इज़हार भी है। एक तो बंदे ने गुनाह किया और छुप कर किया, एक बंदा है कि अलल ऐलान गुनाह किया, मैंने बोलता कि मैंने गुनाह किया है, लो मैं खा रहा हूँ, क्या है माज़अल्लाह, ये ज्यादा खतरनाक है मामला, और आजकल ये हो रहा है, बेबाकी का दर्द हो रहा है। ऐसों को तौबा करके जितने रोजे तर्क किए हैं उन सब की कज़ा भी करनी चाहिए, और आइंदा रमज़ान शरीफ के सारे रोजे रखना चाहिए, आज से शुरू कर देना चाहिए। अब जिंदगी का भरोसा नहीं है कि आज ही मौत आ जाए तो क्या करेंगे, और ऐसों को हमें भी चाहिए कि हम इनफरादी कोशिश करें और इनको समझाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक आतश परस्त का वाकया फैजान रमज़ान में लिखा है कुछ इस तरह कि एक आतश परस्त ने, आग की पूजा करने वाले का बेटा जो था वो रमज़ान शरीफ में बाजार में खा रहा था, तो उस बाप ने इसको मारा एक चंबा कि तू मुसलमानों के बाजार में खा रहा है, ये लोग रोजा रखते हैं, रमजान का महीना है। खैर बात आई गई हुई, बेटे ने अपने बाप को देखा घर में बाप खा रहा है, तो बेटे ने बोला कि वो आपने मुझे तो मारा था खाने पे दिन के वक्त, आप भी तो दिन के वक्त इस वक्त खा रहे हैं घर में, तो बोला मैं घर में छुप के खा रहा हूँ, और तुम अलल ऐलान खा रहे थे मुसलमानों के बाजार में, तुम इनके रमजान की बेहुरमती कर रहे थे, और मैं घर में खा रहा हूँ छुप के। यानी वो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके दिल में इस्लाम की और मुसलमानों की कोई मतलब गुंजाइश थी, एहतराम था, रिस्पेक्ट थी। खैर बात ये भी पूरी हो गई। जब ये आतश परस्त, ये आग का पुजारी, वो आखिरकार जब फोत हुआ तो किसी ने इसको ख्वाब में जन्नत में टहलते देखा, तो ताज्जुब किया कि तू गैर मुस्लिम है, जन्नत में तो सिर्फ मुसलमान जाते हैं, तू कैसे आ गया यहाँ? तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने रमज़ान शरीफ का एहतराम किया था, तो मरने से पहले मुझे अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब कर दिए कि मैंने अपने कुफ्र से तौबा कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो चुका था। ये रमज़ान के एहतराम की बहार, और जो रमज़ान का एहतराम नहीं करते उनको सबक लेना चाहिए कि अपना क्या बनेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि क्या रमजान में उम्रे का सवाब हज के बराबर हो जाता है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का फरमान है कि जिसने रमजान शरीफ में उम्रा किया वो ऐसा है जैसे मेरे साथ हज किया। मेरा नाम अहमद रजा है जी, मैं जिला सरगोदा तहसील बलवाल से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 जुमा जब नहीं पढ़ता उसको क्या कहलाया जाएगा, काफर कहलाया जाएगा या क्या कहलाया जाएगा, या मुसलमानी से फारग हो जाएगा? 3 जुमा नहीं पढ़ता
یہ ہے تو خیر بہت گناہگار ہے، لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے، اسلام سے نکل گیا یہ نہیں کہیں گے. اسلام سے وہ نکلتا ہے کہ جو نماز کو فرض نہ مانے، فرض مانتا ہے اور اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، سخت گناہگار، عذاب نار کا حقدار ہے، جہنمی، یعنی جہنم میں جانے کا وہ مستحق ہے، لیکن یہ کافر اس کو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نیچے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک خصوصی اسلامی بھائی سوال شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بابا جان، میں پنجاب سے 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں اور میں آنکھوں سے نبینا ہوں. الحمدللہ میرا درس نامی کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب نبینا وضو کرتے ہیں وہ اپنے اعضاء دیکھ تو نہیں سکتے، اگر کوئی ان کا اعضاء خشک رہ جائے تو وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. اب خود احتیاط کی وضو میں، جان بوجھ کر کوئی جگہ اس نے سوکھی رہنے نہیں دی، اب اس کے باوجود کوئی کہیں کونا کانچا رہ گیا تو اس کے بارے میں اب اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، مگر یہ کہ احتیاط پوری کرنی ہے. بینا کے مقابلے میں نابینا کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا. بینا بھی تو مطلب احتیاط نہیں کرتے، انہیں بینا منے دیکھنے والا، یہ بھی ایک تعداد ہے احتیاط نہیں کرتی. یہ جو ہے نا قلمے، اس کے برابر یہ جو جگہ کان پٹی یہاں خشک رہ جاتا ہے وضو میں، منہ دھونے میں یوں دھوتے ہیں، منہ یہ حصہ دھوتے ہیں، یہ کان تک لے جانا ہے دھوتا ہوا یوں. اور سر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے تو یہ مستحب ہے. اور ہاتھ دھونے میں یوں کرتے ہیں اور یوں سائڈوں سے پانی بہتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات کونی سوکھی رہ جاتی ہے. حالانکہ یوں تو یہ اپنی طرف سے لوگوں نے کیا، ایسا کچھ ہے نہیں یوں کرنے کا. تو ہاتھ بھی احتیاط سے دھونا ہے، آدھے بازو تک دھونا مستحب. اور پاؤں میں بھی مطلب یہ جو ٹخنا ہے پاؤں کا پچھلے حصے کا، تو اس میں ایک کھانچا ہے، سردیوں میں وہ سوکھا رہ جاتا ہے اگر احتیاط نہ کریں تو. اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، شاید الفاظ میں سب نہ سمجھے ہو، تو کوئی دکھا دیں تو وہ کیمرہ میں دکھا دیں گے. یہاں اسلامی بھائی تو ہوتے ہیں ان مسائل کو سمجھتے ہوتے ہیں، تو میں بتا دوں گا کہ وہ کھانچا کون سا میری مراد ہے. تو یہ بے احتیاطی میں رہ جاتا ہے. ہاں یہ جو کوئی ٹکا سا نظر آ رہا ہے زمین پر رہ کے نشان تھوڑا پڑ جاتا ہے، تو اس کے پاس کھانچا ہے. تو یہ کھانچا سردیوں میں توجہ نہ، ہاں اس طرح یہاں مطلب کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے. سردی میں پانی بہتا نہیں ہے، سردی میں کھال جو ہے نا وہ سکڑتی ہے، دھاریاں پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے وہ یہاں کی بھی تو بعض ایسی جگہ ہیں وضو میں، غسل میں، کہ جو اگر خاص اس پر توجہ نہیں کی جائے نا تو پانی بہنا رہ جاتا ہے، پانی نہیں بہتا اس سے. اور اسی طرح وہ دھاریاں بن جاتی ہیں جو تلوے میں بھی اور ایڑی میں خشک ہو کر وہ دھاریاں بن جاتی ہیں، تھوڑا سا اس میں وائٹنس آ جاتا ہے، سفیدی، اس میں بھی پانی نہیں بہتا. تو اس کو یوں ملیں گے نا. مستحب یہ کہ وضو کرنے سے پہلے اعضاء وضو کو پانی مل لیا جائے، اس سے تھوڑی کھال اسکن جو نرم ہو جاتی ہے. سردیوں میں خاص کر مستحب ہے، خصوصاً گرمیوں میں بھی مستحب ہے، خصوصاً سردیوں میں. تو یہ اگر کر لیں گے نا تو یہ پانی یہ داریوں میں، خانچوں میں، یہ تھوڑا مطلب اس کو نرم کر دے گا کھال کو، پھر پانی بہنا آسان ہو جائے گا. تو یوں آنکھ والے بھی اس کا خیال کم رکھتے ہیں، تو بیچاروں جن کو آنکھیں نہیں ہیں ان کو تو ایک یوں مطلب شیطان بار بار بولتا ہوگا تو تو نابینا ہے، مجبور ہے، تیرے کو معاف ہے، تیرے کو معاف ہے، تیرے کو معاف ہے. تو آدھا ادھا دھو کے، ہو سکتا ہے آدھا ادھا دھو کے اٹھ جاتا ہوں کہ میں تو مجبور ہوں. کھانے میں آدھا ادھا کھاتے ہیں یا ڈبل کھاتے ہیں. اچھا، تو جب کھانے میں اتنا مطلب خیال رکھتے ہیں تو وضو کا بھی خیال رکھیں.
नमाज का भी ख्याल रखें। तो वही कि भरपूर कोशिश करने के बावजूद जिसमें अपना इरादा नहीं था कि कहीं खुश्क रह जाए, तो वो फिर ज़ाहिर कि अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद रखी जाए। जैसे अगर बीना भी, आँख वाला भी अगर पूरी कोशिश करता और कहीं कोई सी मामूली सी चीज़ रह गई, जैसे मच्छर मक्खी की बीट है, या उसकी निगहदाश्त, उसकी यानी कि देखभाल मुश्किल होती है, तो ये इस तरह की चीज़ उसको भी माफ़ हो जाती है, पानी नहीं बहता तो। मगर इनको ये होता है कि जब देख लिया, पता चल गया कि कोई सी चीज़ हल्की फुल्की रह गई थी, तो उसको साफ हटाकर अब ये कि पानी बहा दे। तो जो नाबीना को पता चल गया तो वो भी पानी तो बहाना पड़ेगा उसको, फिर फर्ज है। जो नमाजें पहले पढ़ी वो माफ, लेकिन ये उनके लिए जो मोहतात हैं। बाकी जो तू जा मैं आता हूँ वाला हिसाब किताब करते होते हैं, समझे, जैसे आधा उधा वजू करके उठ गए, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं तो नाबीना हूँ, मेरी मजबूरी है, तो ऐसों की बात नहीं कर रहा मैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत भी खूब नज़र आई कि ये अगरचे इतने मजबूर हैं, आम तौर पर इस तरह के जो मजबूरी में होते हैं वो ख्याल नहीं जहन जाता है, लेकिन दावत इस्लामी के दीनी माहौल की कैसी इनको बरकतें मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये दर्स निज़ामी कर रहे हैं बल्कि इस तरह के मामलात में एहतियात का भी इतना जहन बन गया इनका। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ये स्पेशल पर्सन डेफ इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत से सवाल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि कोई शख्स अगर तरावी की नमाज ना पढ़े तो क्या बाद में वो उसकी कज़ा करेगा? तरावीह की कज़ा नहीं है, मगर लोग तरावीह तो बोलते हैं, लेकिन वो इशा के फ़र्ज वितर सब शामिल होते हैं। तूने कितनी तरावीह पढ़ी, इससे मुराद ये होता है कि कितनी इशा और तरावीह पढ़ी। आमतौर पे तो इशा को वो काउंट नहीं करते, तरावीह बोलते हैं रमज़ान। तो इशा के फ़र्ज और वितर ये तो इन्हीं आओ कज़ा करने होंगे, चाहे 100 साल तक जिंदा रहा तो 100 साल के बाद भी करने होंगे कज़ा, ये माफ नहीं होंगे। और तरावी भी माफ नहीं अगर जानबूझकर छोड़ी, लेकिन उसकी कज़ा नहीं है, तौबा करनी होगी। मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज है कि चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया के हवाले से जो पोस्ट चली थी कि 27 रमज़ान को इमाम मस्जिद को सूट देते वक्त उस दर्जी का पता भी बता दें जो फारिग हो और उसे कपड़े सी दे। तो इसमें साथ कुछ मजीद भी इसमें था, वो ये था कि सूट दे ही रहे हैं तो कफन बनाने वाले कपड़े नहीं, बल्कि जो ब्रांडेड सूट आप पहन कर घूमते हैं वो मस्जिद के इमाम को पेश करें। नमाजी हजरात में भी जो लोग सूट या हार फूल पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इमाम साहब के जो अपने फूल यानी बच्चे हैं उनके लिए कुछ ईदी के तौर पर कैश रकम दे दें। इस दफ़ा अपनी मस्जिद के इमाम साहब को मुबारकबाद में एक छोटा लिफाफा ज़रूर पेश करें, और इसके लिए 27वीं शब या ईद का इंतज़ार मत करें। बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, आपका बच्चा नए सूट में और इमाम साहब के बच्चे को नई चप्पल भी मुयस्सर ना हो तो अंदाज़ा लगाइए हम अखलाकी तौर पर कितने गिर चुके हैं। आपकी मस्जिद का 80% चंदा भी इमाम साहब की मेहनत और कोशिश से आता है, जिसका